Hello and welcome back you all to the Commerce Success. I'm Rahul Thakur, your economics teacher. So I hope you have completed the previous lectures on the macroeconomics, which was on the topic of the circular flow of income. Then second was the some basic concept of the macroeconomics. Then we have seen what are the aggregates of the national income. Now we are going to see how the actually national income is calculated, or we can say how actually the GDP is got calculated. We all know that whenever we see newspaper, we see that China is the second world largest second economy, India is the world fourth largest economy, USA is the world largest economy. So how these things have been calculated? So in this chapter, we are going to see that when we say any country is number one in the per capita income, if a country have a per capita income of this much, that much, then how this is actually got calculated, which sector of the economy have contributed to how much to the economic growth, how we calculate all these things. So in this chapter we are going to calculate the national income, and I have already told you what is the definition of the GDP, that is the gross domestic product. So again, one more time I am going to write it here, then we will see how we are going to calculate the national income. So what is the meaning by the GDP? This is the gross domestic product. What it mean? It refers to the sum of value of all the final goods and services produced in a country or economic territory during a period of 1 year. Okay, here are the three key points that we are going to see. All the final goods and services, keep this in mind, we are just talking about the final goods and services. We are not talking about the intermediate goods or raw material that have been produced in the country. Okay, we are talking about the final goods and the services. Second thing here is the it is produced within domestic boundary of a country. So I have written here country, and this country mean domestic territory of a country. Domestic territory. And third thing is the period of a 1 year, that we know the accounting year begin from 1st April to next year 31st March. So this is the period of a 1 year. Now what is the GDP? One more time, it is a sum total of all the final goods and services. Now we are going to calculate how we add all these things to find the final value of the goods and services. And the value of the GDP that we are going to calculate, this value is only going to be converted into the other value like national income. How do we write national income? We also say national income as NNPFC. If we have to say domestic income, we say NDPFC. Okay, these all are the related aggregates of the GDP. Whenever I say GDP, it means GDP MP. Okay, so these are the things, and they are interconnected and interconvertible. Means if you have NNPFC, you can easily find with some other more values the value of the GDP. If you have GDP, you can easily find these two things and other related concept that we have seen in the previous video, how we can calculate the national income and related aggregate by adding depreciation, net factor income from abroad, net indirect tax. So now we are simply going to see what are the methodologies that we have got to calculate the national income. Majorly we have three methods of the calculating national income. The first one is
द ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड, जिसको हम कहते हैं GVA, मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडिशन. So this is the GVA and gross value addition. Before moving ahead, let me also discuss the other two methods. One is the first is the gross value addition. Second is the income method. Third is the expenditure method. These all are different when we see it, but when we dive deep into this, we come to know that all these three things are the same. Let me prove this. How the GVA, gross value addition, equals to income, and that is equal to the expenditure method. Okay, there might be some variation in the values due to calculations and also the components that we are adding, but more or less if we see, gross value addition, income method and expenditure method is the same. Here the value addition just mean value addition, how much factor income you have earned. I am going to explain this further in this video only, but before that, just see in the brief. Value addition just means income that you have earned. Income that you have earned. And in the circular flow of income, we have read what you earn means what is your income is your expenditure. Okay. So, more or less, value addition is your income, and income is equal to expenditure. Although there are some more things like concept of saving, concept of investment, and other things. That's why I have told you there might be some variation, but more or less they are the same thing. Okay. So now let's see the GVA in a detailed manner. Gross value just mean you have to adding value addition done by all the sectors of a economy. Okay, the value addition just mean the addition of value addition done by the all the sectors of the economy, and in which thing they have added value. They have added value means value added to the raw material. Okay, now let's see a simple analogy. Like there is a farmer, he has produced wheat worth rupee 500. Okay, and we are assuming here the farmer have zero input cost, means he have not invested anything, although we know that farmer also invests a lot of money in the production of the wheat, rice and all the thing crops, but here we are considering that farmer have a zero production cost and he has produced the goods worth rupee 500. I'm just telling the economics point of view, not my own point of view. So here he has produced goods of worth 500 rupees and his input cost is zero. So what he have did, now he have sold this wheat to the mill owner, mill मतलब चक्की वाले को, to worth rupees 700. So he is the mill owner. Now this mill owner is going to sell this wheat, maida and other things to the bakery owner for rupee 1000. Okay, so let me again correct this thing. The farmer have zero input cost and he have produced goods of worth rupee 500, that is wheat. Now he have sold it to the mill owner for 500 rupees. If I have done some little bit I think mistakes,
तो वहाँ पे उसके लिए है ना कोई दिक्कत नहीं है, अभी एडजस्ट करते हैं उसको। अब यहाँ पे क्या है, जो मिल ऑनर है उसने उसको क्या किया, आटे को जो भी गेहूं है उसको पीसा होगा। अब पीस के उसने क्या किया, उसमें वैल्यू एडिशन कर दिया 200 का, और उसको आगे बेच दिया कितने का, 1000 रुपये में, सॉरी 700 रुपये में उसने बेच दिया उसको। अब ये 700 रुपये में क्या किया, जो मिल ऑनर केक वाला है उसने भी वैल्यू एडिशन किया और 1000 रुपये का केक बना के कस्टमर को बेच दिया। अब यहाँ पे वैल्यू एडिशन कैसे हुआ देखते हैं। फार्मर का इनपुट कॉस्ट क्या था, 0, और उसने मिल वाले को कितने में बेचा, 500 का। मतलब यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, 500 का। मिल वाले ने कितने का खरीदा था, 500 का खरीदा था, बेचा कितने का, 700 का, मतलब कि 200 का वैल्यू एडिशन। ठीक है। अब जो हमारा केक वाला था, बेकरी वाला है ना, कराची कैफे, जो कराची बेकरी है ना, कहाँ पे, हैदराबाद में है। तो अब जो है हमारा क्या नाम है, मिल वाले ने इसको 700 का बेचा। अब जो केक वाला है उसने क्या किया, 300 रुपये का वैल्यू एडिशन किया और कस्टमर को 1000 रुपये का बेच दिया। अब यदि आप यहाँ पे देखोगे तो फार्मर हैव 0 इनपुट कॉस्ट बट ही हैव सोल्ड द गुड्स वर्थ ₹500, मीन्स हाउ मच वैल्यू एडिशन ही हैव डिड, 500 रुपया। तो ये जो 500 रुपये का वैल्यू एडिशन किया वही उसकी क्या है, अर्निंग है। और वैल्यू एडिशन कैसे होता है, हमने पढ़ा था जो फैक्टर इनकम है, या फैक्टर जो हम फैक्टर प्रोडक्शन को जब प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाते हैं उनके द्वारा जो भी चीज़ अर्न की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, वो ही वैल्यू एडिशन है। बाकी चीज़ तो रॉ मटेरियल का ही पार्ट हो जाता है। जैसे मिल वाले में समझते हैं इसको, मिल वाले ने 500 का कच्चा माल खरीदा है ना, और मान लेते हैं उसने जब उसको पीसा, आटे को पीसा, उसमें बिजली का खर्चा आया हुआ, ये सब चीज़ें आई होंगी, उसको भी 500 के अंदर मान लेते हैं। प्लस उसने जो 200 रुपये में एक्स्ट्रा में बेचा, वो क्यों बेचा, क्योंकि जो 200 एक्स्ट्रा है वो वैल्यू एडिशन किस बात का है, उसने जो फैक्टर इनकम वहाँ पे डाला, चाहे वो एज अ ऑनर उसने प्रॉफिट अर्न किया, चाहे उसने एज ए लेबर उसमें जो भी मेहनत डाली, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है। अदरवाइज जो चीज़ हमने 500 की ली और उसको मैं 500 का ही आगे बेच दूंगा तो उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, और गुड्स की जितनी कॉस्ट पड़ी उतनी ही बेच दिया। बट हम वैल्यू एडिशन करते क्यों, ये समझो। किसी भी गुड्स में वैल्यू एडिशन इसलिए किया जाता है क्योंकि हमने कुछ ना कुछ फैक्टर सर्विस दी होती है। यदि एक सिंपल दुकानदार होलसेलर से, जो रिटेलर होता है, वो होलसेलर से कोई चिप्स कुरकुरा या कोई भी सामान जो है राशन का, ग्रोसरी का खरीद के लाता है और उसमें 2-4 रुपये एक्स्ट्रा करके उसे बेच देता है। क्यों, क्योंकि उसने जो मेहनत की है ना उसको लाने में, बेचने में, तो जो पूरा उसके लिए वो क्या करता है, कुछ चार्ज करता है, तो उसके थ्रू वो वैल्यू एडिशन करता है। फिर यहाँ पे जो बेकरी वाला है इसने 700 का रॉ मटेरियल लिया और 1000 रुपये में केक बेच दिया। 300 रुपये किस बात की, उसने भी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसमें इस्तेमाल किए हैं, लगाया है, उसकी वजह से वैल्यू एडिशन हुआ है। तो हम वैल्यू एडिशन क्या बोलते हैं, जो रॉ मटेरियल में आपने क्या किया, वैल्यू ऐड कर दिया। अब रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड इस तरह से नहीं किया कि आपने उसमें कुछ नई चीज़ लगा दी, आपने अपनी मेहनत से, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से उसको प्रोसेस कर दिया, कुछ और बना दिया। जैसे यहाँ वीट को हमने क्या किया, आटा बना दिया, यहाँ पे आटे को क्या किया हमने, केक बना दिया। अब बाकी इसमें जैसे केक बनाने में भी माइक्रोवेव में एनर्जी लगेगी, बिजली लगेगा, केक के ऊपर चॉकलेट डाला जाएगा, क्रीम डाला जाएगा, इन सबको भी हम मान के चल रहे हैं कि 700 के अंदर वो कवर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू एडिशन के थ्रू ही इनकम जनरेट होती है। ठीक है, तो आप इस एनालॉजी को याद रखना, ये हम बार बार यूज करने वाले हैं। अब वैल्यू एडिशन कैसे होता है और किस, ये तो हमने देख लिया। अब वैल्यू एडिशन कौन कौन करता है, इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर होते हैं। जनरली हम जानते हैं इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट इज द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड इज द सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड इज द tertiary sector, and all these 3 sector do some kind of value addition or contribution to the economy। अब कौन कितना करता है ये हमारी दूसरी बुक का कॉन्सेप्ट है, जब हम वो पढ़ेंगे तो उसको हम देखेंगे ना, पर सबसे ज़्यादा कौन करता है, हमारा ये करता है, उसके बाद ये, फिर ये। ठीक है, अब इन सब की हम हमारे जो इकोनॉमिक्स में, जो अफली इकोनॉमी में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इन तीनों का अलग अलग ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकाला जाता है। जैसे कह सकते हो ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ बाई प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय द सेकेंडरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय द टर्सरी सेक्टर, और फिर इन तीनों को जोड़ दिया जाता है और फिर निकाल दिया जाता है हमारी जीडीपी कितनी है। ठीक है, अब जीवीए को निकालते कैसे हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में हम किस तरह से करते हैं एडिशन। अब न्यूमेरिकल को हम प्रैक्टिकल देखते हैं, है ना।
अब इसको सुन लिया बहुत, अब पढ़ते हैं इसको। ग्रॉस वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? फॉर्मूला है वैल्यू एडिशन, हम यहाँ पे लिखेंगे VA वैल्यू एडिशन इक्वल टू में वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। मतलब कि आपने जितने का रॉ मटेरियल खरीदा उसको आपने प्रोसेस करके बेचा, तो उसके बीच में जो गैप होगा वही आपका क्या है? वैल्यू एडिशन है। जैसे अभी हमने देखा जो मिल वाला था उसने 500 का रॉ मटेरियल खरीदा गेहूं, उसको 700 में बेचा, तो उसने वैल्यू एडिशन कितने का किया? 200 का। ये जो 200 है वही उसकी क्या है? अर्निंग है, वही इसकी फैक्टर इनकम है, वही उसकी कमाई है। इसी तरह से चक्की वाले ने केक वाले ने 1000 रुपये का केक बेचा, 700 का उसने मैदा या आटा खरीदा, तो 300 का वैल्यू एडिशन हुआ। फार्मर ने के केस में हमने देखा फार्मर का इनपुट कॉस्ट हमने 0 माना था, इसने जो वैल्यू एडिशन करके भेजा आउटपुट वो 500 का बेचा, इसने वैल्यू एडिशन कितने का किया? 500 का किया। मतलब कि इन सबका वैल्यू एडिशन टोटल कितना हो गया? हम यहाँ पे देख सकते हैं 1000 रुपीज़। ठीक है, बट ये आपको देखना है वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है, ये मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था। अब आगे और देखते हैं इसको डिटेल में, आउटपुट में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। पहले आउटपुट का ऑपरेशन करते हैं। आउटपुट में सबसे पहला चीज़ और सिंपल चीज़ क्या है? सेल्स। क्या आता है? सेल्स आता है। अब सेल्स भी दो तरीके की हो सकती हैं, या तो आपने खुद के डोमेस्टिक मार्केट में चीज़ें बेची हूँ, है ना, हमारे पास हरदम ऑप्शन है कि आपने जो भी चीज़ प्रोड्यूस की है वो आप विद इन कंट्री बेचते हो या फिर आप एक्सपोर्ट करते हो। ठीक है, आपने मतलब ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है मतलब इतना सामान आपने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, इसके बाद आता है सेल्फ कंजम्पशन। अब मान लो कोई प्रोड्यूसर है, उसने कोई चीज़ प्रोड्यूस की और उसको सेल्फ कंज्यूम कर रहा है, खुद ही उसने कंज्यूम भी कर लिया। जैसे फार्मिंग के केस में होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो वीट या गेहूं अनाज किसी भी तरह का अनाज उगाते हैं और वो उसको खुद कंज्यूम भी करते हैं, तो उसकी वैल्यू को भी इसमें जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट का सीधा मतलब है आपने टोटल कितना प्रोड्यूस किया। वैल्यू ऑफ आउटपुट का सीधा मतलब है कितना वैल्यू एडिशन किया गया है। सॉरी, वैल्यू ऑफ आउटपुट का सीधा मतलब है कितना गुड्स प्रोड्यूस किया गया है। अब उस प्रोड्यूस को आपने पूरा का पूरा सेल कर दिया या सेल्फ कंज्यूम कर लिया या आपने बचा के रख लिया, बेचा नहीं है और अगले साल बेचोगे या बाद में बेचोगे, तो उन तीनों चीज़ों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया सेल। सेल भी दो तरीके हो सकती हैं, या तो आप डोमेस्टिक मार्केट में बेच दो, इंडिया में बेच दो, या आप एक्सपोर्ट कर दो, या फिर आप क्या करोगे? सेल्फ कंज्यूम करोगे, या तीसरा ऑप्शन क्या है? आप कुछ स्टॉक रख लोगे, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। जो आपके पास स्टॉक माल गोदाम में पड़ा रह जाएगा वो भी आपका क्या है? असेट है। अभी नहीं बेचा, बाद में बेच देंगे, बट क्या अभी इसको आपने प्रोड्यूस किया तो उसको वहाँ पे हम मानेंगे। चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को याद रखना, चेंज इन स्टॉक को हम एक अलग तरीके से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये तीन चीजें आती है हमारी किसमें? वैल्यू ऑफ आउटपुट में। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ इनपुट की। तो वैल्यू ऑफ इनपुट को यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो ये थोड़ा आसान है क्योंकि इसमें क्या क्या आता है। जैसे इस पर सेल था तो इसमें परचेज आ जाएगा। अब परचेज भी दो तरीके की हो सकती हैं, या तो हो सकता है आपने डोमेस्टिक मार्केट से खरीदा हो चीज़ को, या आपने बाहर से इंपोर्ट किया हो। ठीक है, परचेज में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आती मेरे ख्याल में, तो अभी नहीं है। ठीक है, परचेज में सिर्फ एक ही चीज़ आती है जो कि है डोमेस्टिक मार्केट से परचेज किया हो। मतलब वैल्यू ऑफ इनपुट में सिर्फ दो ही चीज़ आती हैं, उसमें भी दो चीज़ क्या है? परचेज का ही सब कैटेगराइजेशन है। या तो आपने परचेज डोमेस्टिक मार्केट से किया होगा, या आपने परचेज क्या है? बाहर के मार्केट से किया होगा, इंटरनेशनल मार्केट से, जिसे आप इंपोर्ट के रूप में दिखा सकते हो। अब इनका जो गैप आएगा वही हमारा क्या होगा? वैल्यू एडिशन होगा। अब न्यूमेरिकल मैंने आपको करके दिखाया कि किस तरह से फार्मर ने 0 रुपये का इनपुट डाला, 500 रुपये का आउटपुट निकाला, मतलब टोटल वैल्यू एडिशन क्या होगा? +500।
बेकरी वाले ने 1000 का आउटपुट दिया, 700 का इनपुट यूज किया, तो वैल्यू एडिशन हो गया 300। इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू एडिशन मेथड इतना ज़रूरी क्यों है, इसको हम जानते हैं। वैल्यू एडिशन मेथड का इंपॉर्टेंस जो है वो इतना क्यों दे रखा है। अब हम एक दोबारा से एनालॉजी लेते हैं। हमारा जो फार्मर का था, जीरो था, मान लेते फार्मर ने 500 बेच दिया, फिर उसको 700 रुपये बेचा मिल वाले ने, फिर उसको 1000 रुपये बेचा केक वाले ने। अब यहाँ पे समझो आप, जनरली बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं। अब यहाँ पे समझो आप, जनरली बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं। यदि उनसे पूछूं कि बताओ इस पूरे एनालॉजी में, पूरे एग्जाम्पल में जीडीपी कितनी है, तो वो क्या करते हैं, 500 प्लस 700 प्लस 1000 को ऐड कर देंगे और कहेंगे लो जी हमारी जीडीपी आ गई 2200 रुपये या 2200 करोड़, जो भी आपको कहना कह सकते हो। बट क्या जीडीपी ऐसे निकाली जाएगी? ये बिल्कुल गलत मेथड है। और इसमें ये मेथड का क्या है, बिल्कुल गलत तरीका है। सही तरीका क्या है और ये गलत क्यों है, इसको भी जानते हैं। ये गलत इसलिए है, ये जो 700 रुपये है इसके अंदर ये 500 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये एक बार यहाँ पे काउंट हो गया एज ए रॉ मटेरियल, एक बार यहाँ भी काउंट हो गया और एक बार यहाँ भी काउंट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं मिस्टेक ऑफ डबल काउंटिंग, है ना, या फिर एरर ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, तो इस एरर ऑफ डबल काउंटिंग को एलिमिनेट करने के लिए हम यूज करते कौन सा, वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक है, हम इसका लिए क्या यूज करते हैं, वैल्यू एडिशन मेथड। अब जैसे इसमें कितना वैल्यू ऐड हुआ, 500, इसमें 200, इसमें 300, जितनी भी वैल्यू एडिशन हुई है यदि आप इन सबको जोड़ दो, जो कि है 500 प्लस 200 प्लस 300, ये आपको जीडीपी की ट्रू वैल्यू देंगे जो कि है 1000। और मैंने आपको पहले ही कहा था वैल्यू एडिशन हरदम किस मेथड से होता है, फैक्टर इनकम की मदद से होता है। जब भी आप कोई फैक्टर इनकम अर्न करते हो या फैक्टर सर्विस कंट्रीब्यूट करते हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो, वैल्यू ऐड करते हो। और यहाँ पे क्या रॉ मटेरियल का दोबारा काउंट हो रहा है, देखो ना इसमें 500 तो चलो इसमें काउंट कर दिया हमने। ठीक है, अब ये 700 कैसे बनाए, ये जो 700 बनाया आटे का, ठीक है, 500 प्लस 200, और ये 500 तो वही पुराना वाला है। फिर इस 1000 को हम तोड़े, ब्रेक डाउन करें तो 500 प्लस 200 प्लस 300, इसमें फिर ये 700 दो बार काउंट हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी काउंट हो रहा है और यहाँ भी काउंट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, एरर ऑफ डबल काउंटिंग होती है। तो वैल्यू एडिट मेथड में हम इसको अवॉइड करने, वैल्यू एडिट मेथड हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं, पूरी तरह से देखते हैं वैल्यू एडिट मेथड को एक सिंगल फ्रेम में। यहाँ पे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज द डबल काउंटिंग का जो भी हमने कॉन्सेप्ट देखा, ये एग्जाम में आ जाता है कई बार कि व्हाट इज द एरर ऑफ डबल काउंटिंग। 2 या 3 नंबर में आपको पूछ लेंगे, तो वहाँ पे आपको वो डिफाइन भी करना होगा और साथ में आप चाहो तो एक एनालॉजी अपनी तरफ से देखिए बता सकते हो कि हाँ जी इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, दैट इज द एरर ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, अब इसको हम एक बार दोबारा देखते हैं। देखो जो वैल्यू एडिशन मेथड क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन जीवीए है, और ये जीवीए एमपी पे होता है, और इसी को हम प्यार से मोहब्बत में जीडीपी एमपी भी कह सकते हैं। अब इसमें 3 चीज़ें मैंने बताई आपको, ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाई प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाई सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाई टर्सरी सेक्टर। जब आप इन तीनों को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जीवीए या जीडीपी मिल जाएगा, मतलब पूरे इकोनॉमी में मिलकर कितना कंट्रीब्यूट किया। तो तीनों सेक्टर जो अलग अलग है उनको आपने एक में जोड़ दिया। ठीक है, अब आपको मिल चुका है जीडीपी। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई साहब जीडीपी को बनाओ आप क्या, एनडीपी एमपी बनाओ या फिर एनएनपी एफसी बनाओ, जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, और इसको चलो हम डोमेस्टिक इनकम लिख देता हूँ मैं, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप कैसे करोगे, आराम से जीडीपी एमपी, ये मैंने लास्ट चैप्टर में समझाया था। जो आपको कन्वर्ट करना है जिस चीज़ में उसको यहाँ रख देते हैं। मान लेता हूँ मैं नेशनल इनकम पे काम कर रहा हूँ, तो जी मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एन मतलब नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन। तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे। डी मतलब डोमेस्टिक, एन मतलब नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। यहाँ प्लस करना पड़ेगा NFI जो कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, और ये किसी से बनता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। पी और पी का कोई दिक्कत नहीं है। MP और FC का क्या मसला है, यहाँ पे NIT का मसला है, NIT यहाँ माइनस हो जाएगा। जनरली मैंने बताया था हम मान के चलेंगे MP बड़ा होगा FC छोटा होगा, तो ये चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है। इस तरह से हमने कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम कंप्लीट किया है ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड से या फिर वैल्यू एडिशन मेथड से। और याद रखना जब भी आप GV मेथड लगाओगे तो आपको जो मिलता है वो GDP MP मिलता है, और इस GDP MP को आप कन्वर्ट करते हो GDP NDPFC NNPFC या किसी और भी रिलेटेड एग्रीगेट्स में। ठीक है, यदि कोई डाउट हो आपको इस रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम देखते हैं कुछ प्रिकॉशंस जो हमें ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड करते टाइम ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि वैल्यू एडिशन में कुछ ऐसी चीज़ों को ना जोड़ दें जिससे कि हमारी जो वैल्यू निकलती है GDP की वो गलत आ जाए। तो ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए, उसको लेके एक बार हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग क्या है हमारी, प्रिकॉशंस ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडिशन। प्रिकॉशंस, और ये बहुत ज़रूरी है, ये भी एग्जाम में कई बार आता है। ठीक है, कई बार ये एग्जाम में इस तरह से आता है कि वैल्यू एडिशन ये जो चीज़ है इसको GDP में कैलकुलेशन में जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा तो क्यों जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा तो क्यों नहीं जोड़ा जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझो और इसको ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज़ क्या है, ये चीज़ हम देख चुके हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नॉट टू बी इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। रीजनिंग आप यहाँ क्या दोगे, इसलिए नहीं करोगे क्योंकि जो फाइनल गुड्स होता है उसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। जो हमने 1,000 रुपये का केक देखा था उसके अंदर क्या था, ऑलरेडी आटे का और जो गेहूं था सबका कीमत ऑलरेडी इसमें ऐड था, तो इसलिए उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या आता है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अब सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को भी हम नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये सेकेंड हैंड है, क्योंकि पहली बार जब इन्हें खरीदा या बेचा गया होगा तब इन्हें ऑलरेडी ऐड कर दिया गया होगा। अब आप दोबारा उसको बेचोगे या खरीदोगे तो वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक बार पहले ही जब उसको पहली बार बेचा गया था एज अ फाइनल गुड तब उसको ऐड कर लिया गया था। ठीक है, बाकी कमीशन मान लेते हैं आपने किसी डीलर के थ्रू उसको सेल परचेज किया, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ ऐड हो सकती है, क्योंकि कमीशन जो ले रहा है, जो डीलर ले रहा है, ब्रोकर ले रहा है, वो हर बार न्यू होता है, इसलिए आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है हमारे पास, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नॉट इंक्लूडेड। आपने जो सर्विसेज खुद के लिए प्रोड्यूस किए हैं आप उसको इंक्लूड यहाँ पे नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, जैसे कि मान लेते हैं, पहली बात तो इंक्लूड क्यों नहीं करोगे, इसका रीज़न ये है कि उसका वैल्यू एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल है। वैल्यू एस्टिमेशन मेथड उसका मुश्किल है कि आपने खुद के लिए कितनी सेवा की। मान लेते हैं आपने खुद के लिए खाना बनाया, तो भाई कितने का खाना बनाया आपने, क्या वैल्यू दोगे उसको। जैसे होटल में हम गए 100, 200, 400 रुपये दे दिए, तो क्या उसकी वैल्यू 100, 200 रुपये, 400 रुपये जोड़ोगे, तो वो नहीं माना जाएगा इस केस में। जैसे मान लेते हैं डॉक्टर है, उसने अपने खुद के बेटे को ट्रीट कर दिया या खुद की मदर को ट्रीट कर दिया, तो क्या वो बोलेगा कि भाई चलो ठीक है 500 रुपये दो फीस मेरी या 1000 रुपये दो, नहीं ना। तो उसमें एस्टिमेट करना थोड़ा ये मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं जोड़ते हैं। यदि यहाँ पे सर्विस की जगह गुड्स हो तो गुड्स की वैल्यू को आराम से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपने, कोई दुकानदार है जिसकी दुकान है ग्रोसरी की, और उसने अपनी दुकान से क्या किया, मैगी खरीद के बना के खा लिया, तो हमें पता है ना उस मैगी की वैल्यू कितनी है, वो 15 रुपये की मैगी आती है, उसका जो छोटा पैकेट है, तो उसको उसमें हम जोड़ देंगे आराम से। बट सर्विसेज में क्या है, वैल्यू एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम उसे नहीं जोड़ते हैं। पांचवा क्या है, ये बड़ा अजीब है, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स हाउस।
ये भी एक सातवां अजूबा है। अजूबा क्यों है? क्योंकि आप मान लेते हैं आप खुद के घर में रह रहे हो, आप चाहो तो अपने ही घर के में जो एस्टिमेटेड रेंट है उसको ऐड कर सकते हो। आप ऐसा मान के चलो कि आप अपने घर में ना रह के एक रेंटेड हाउस में रह रहे हो। यदि आप उस रेंटेड हाउस में रहते तो आप कितना पे करते रेंट? जितना भी आप रेंट पे करते तो वो क्या है, आप उसको एस्टिमेट करके जोड़ सकते हो। अब आप ये पूछ सकते हो जो एस्टिमेशन ऑफ हम रेंट हाउस में कर रहे हैं वो हम सर्विसेज में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर्विसेज अलग अलग तरह की होती है, वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है उनको करना, पर रेंट हाउस में एस्टिमेट किया जा सकता है। और बहुत सारी चीज़ों के लिए रेंट को रेगुलेट भी किया जाता है बहुत सारी जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं। और बाकी चीज़ें जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं जो प्रिकॉशंस बना रखे इकोनॉमिस्ट ने, वो है उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते फिलहाल। तो पांचवी चीज़ क्या आती है? हाँ, एक दो तीन हमने देखा, पांचवी चीज़ क्या है? पांचवी चीज़ है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये इंक्लूड की जाती है, क्योंकि मैंने बताया था सर्विस इंक्लूड नहीं होगा बट गुड्स को किया जाएगा, उसकी वैल्यू एस्टिमेट करना आसान है। छठी चीज आती है चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स, मतलब इन्वेंट्री जो है आपकी, इसको आप इंक्लूड कर सकते हो कि आपके जो घर में सॉरी आपके जो गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है सामान का, उसको इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि इससे बेच के आप फ्यूचर में पैसा अर्न कर सकते हो, जो कि आपका सेल का पार्ट है, आपके आउटपुट का पार्ट है ना। तो उसे आप ऑब्वियसली बात इंक्लूड करोगे ही करोगे। लास्ट आता है सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। डिबेंचर्स एंड अदर जो सिक्योरिटीज होती है इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, बॉन्ड्स की वैल्यू भी बढ़ती है, डिबेंचर्स की वैल्यू भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती है, बट वो वैल्यू बढ़ना ना बढ़ना एक बराबर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि उस वो किसी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है ना। यदि मान लो किसी शेयर के प्राइस रातों रात बढ़ गए तो क्या किसी गुड्स का प्रोडक्शन भी रातों रात उतना बढ़ जाएगा? नहीं ना। एक्चुअली ये रियल गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं। ये तो पूरी तरह से एक फर्जीवाड़ा होता है, एक्सपेक्टेशंस होता है। आपने बोल दिया जिसका प्राइस इतना हो गया तो मैंने मान लिया, बस ये वाली बात होती है। इन्हें इकोनॉमिक्स में फिक्टिशियस असेट कहा जाता है। ठीक है ना। सारी चीज़ें पेपर के ऊपर चल रही है, सारी चीज़ें क्या है, प्रॉमिस के ऊपर चल रही है। तो इसलिए क्या है, रियल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर वैल्यू इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता ज़्यादा। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं प्रिकॉशंस जो कि हम लेते हैं वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड। और ये आपके एग्जाम में ये जो पॉइंटर्स हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगी और पूछा जाएगा 1 1 मार्कर में, जहाँ पे आपको रीजनिंग बतानी होगी इसकी। ठीक है, अब जो अगला मेथड हमारा है वो हमारा इनकम मेथड है। अब इनकम मेथड को मैंने बताया आपको पहले ही, जिस तरह से जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में हम क्या करते हैं, हम फैक्टर इनकम को उसमें देखते हैं। फैक्टर इनकम के थ्रू ही क्या है, वैल्यू एडिशन होता है। अब जब हम इनकम मेथड को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, अब जब हम इनकम मेथड को देखेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से इनकम को जनरेट किया जाता है और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। तो आइए चलते हैं जरा हमें। अब देखो इनकम मेथड में पहली बात, इनकम के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल द इनकम, और ये बात हरदम आपको याद रखनी है, इनकम इज ऑलवेज मीन द फैक्टर इनकम, इनकम नेवर मीन्स द ट्रांसफर इनकम, इट इज ऑलवेज मीन बाय
द फैक्टर इनकम, द अर्नड इनकम, ठीक है। ऑल द इनकम्स दैट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अकर टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय वेजेज, प्रॉफिट, रेंट एंड इंटरेस्ट एटसेट्रा आर सम्ड, इन सबको ऐड किया जाता है टू ऑब्टेन नेशनल इनकम, ठीक है। अब इसको आप समझ पा रहे होंगे कि क्या बोल रहा है, डेफिनेशन में ही बता दिया, ऑल इनकम्स दैट अक्यू टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। और मैंने पहले क्लास में ही आपको बताया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, और दूसरे में बताया था कोई भी इनकम जो जनरेट होती है तो इन चार फॉर्म में ही मिलती है हमें, वेजेज, प्रॉफिट, रेंट एंड इंटरेस्ट। वेज मिलता है लेबर को, प्रॉफिट मिलता है एंटरप्रेन्योर को, रेंट मिलता है लैंड जो हमने रेंट पे लिया है, इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पे। और जब इन सबको आप जोड़ दोगे तो ये क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। मतलब कि एक देश के लोगों ने मिलकर कितना उस साल में इनकम जनरेट किया है, ठीक है। इसको आप उतार लोगे। अब चलते हैं कंपोनेंट्स क्या है इसके। अब इनकम तो हमने देख लिया वेजेज, बट वेजेज के भी कुछ सब पार्ट्स हैं। वेजेज आपको किस किस फॉर्म में मिल सकते हैं, प्रॉफिट आपको किस किस फॉर्म में मिल सकता है, या प्रॉफिट के कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। जब हम रेंट की बात करते हैं तो रेंट कितने तरह के होते हैं। अब रेंट तो जनरली जो रेंटल इनकम होती है, कमर्शियल रेंटल, वो एक ही तरह का होता है, और उसमें एक और ट्विस्ट है वो देखेंगे, और फिर इंटरेस्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। सो नाउ वी आर बैक टू द कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल इनकम, ओके, national income method. So now we are components of national income. अब इसको एक एक करके बढ़िया से डीप में समझेंगे। सबसे पहला आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉय को मार दिया या एक्सीडेंट हो गया और उसको बदले में हम कंपनसेट कर रहे हैं कि भाई आपका हार्म हो गया। इट जस्ट सिंपली मीन्स वट एवर द सर्विस ही हैड डन टू द एंटरप्राइजेज, कंपनी और इंडस्ट्री, ही विल गेट समथिंग फॉर दैट। मीन्स उसकी जो फैक्टर इनकम है जो कि वेज होती है सिंपल फॉर्म में। बट सिंपल क्या, वेज सिर्फ सिंपल फॉर्म में जो हमारी वेजेस हैं वो कैश में मिलेगी खाली, वेजेस भी कई तरीके से मिल सकती है हमें, और वेजेस के भी कई सब कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है, पहला तो है वेज एंड सैलरी दे दिया, वेज एंड सैलरीज इन कैश। 1 तारीख हुई, खटाखट अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो चुके हैं, तो ये क्या है, कैश में मिल रही है हमारी वेज एंड सैलरी, तो ये तो हम सब जानते ही हैं। दूसरा इसका पार्ट होता है वेज एंड सैलरीज इन काइंड। और हम जानते हैं जो वर्ड है वेज और सैलरी, इकोनॉमिक्स में ऑल दो हम वेज वर्ड ही यूज करते हैं, बट जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे वेज लेबर्स के लिए या फिर जो मैनुअल वर्क है उसके लिए यूज़ किया जाता है, और सैलरी जो ऑफिशियल लोग होते हैं उनके लिए किया जाता है। ऑल दो सबको हमें सेम मानना चाहिए क्योंकि सभी कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, है ना, बट ठीक है। अब वेज एंड सैलरी ना काइंड, ये तो कैश में हो गया जी, दिहाड़ी जो अभी आपने ड्यूटी की, आपने जो भी जॉब की, आपको उसकी दिहाड़ी भेज दी गई है अकाउंट में। अब दूसरा क्या आपको काइंड में दिया गया है, जैसे कि एक आदमी मानते हैं एक बाइक की शोरूम में काम कर रहा है, अब उसे भी बाइक की ज़रूरत है, और उसकी सैलरी मानते हैं 50-60 हज़ार रुपये है। अब कंपनी ने बोला भाई आप सैलरी जो ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आपको बाइक भी चाहिए, तो काम करो आप अपने सैलरी के बदले में आप कोई बाइक ले लो, है ना, कुछ कुछ पेमेंट आप कटवाते रहना उसमें से। माने तो उसने क्या किया, कहा ठीक है जी, जो मेरी 60 हज़ार रुपये सैलरी है, 60K, उसमें से आप मुझे 30K तो पे कर दो कैश में, और 30K के बदले बाइक दे दो। बाइक मतलब ये नहीं कि 30 हज़ार में बाइक दे दो उसको, हर महीने उसकी सैलरी से 30 हज़ार रुपये काट लेगा वो कंपनी। तो कुल मिला के क्या है, ये भी उसकी सैलरी का पार्ट ही है। वो 2 फॉर्म में दे देगा, एक वेज इन कैश है ना, हार्ड कैश,
एंड अदर इन फॉर्म ऑफ काइंड, मतलब कोई भी गुड्स दे दिया गया जो वो इंडस्ट्री बना रही है, या कोई सामान दे दिया गया, ठीक है। जैसे आप एक और चीज़ देखते हो, दिवाली पे जो बोनस आता है, बोनस में हम क्या कई बार कैश देते हैं बोनस में, कई बार सामान दे दिया, रेफ्रिजरेटर दे दिया, कार दे दिया, है ना, या कुछ और सामान दे दिया। कुछ जो अभी रिसेंट में न्यूज़ आ रही थी पिछले 2 साल में, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को गाड़ी गिफ्ट किए हैं, तो वो भी क्या काइंड ऑफ काइंड नहीं है, वो बोनस इन काइंड कह सकते हो आप। यहाँ पे क्या है, सैलरी इन काइंड। अब इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंपनी और बेनिफिट दे रही है, कह रहे जी ये भी ले लो, इसको आप कह सकते हो सोशल सिक्योरिटीज़। अब सोशल सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में क्या क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, है ना, प्रोविडेंट फंड दे दिया। हम जानते हैं प्रोविडेंट फंड क्यों होता है, बुढ़ापे के लिए पैसे इकट्ठा होता है इसमें। अब आप कहोगे ये सैलरी का पार्ट कैसे हो गया, सैलरी का पार्ट इसलिए हो गया क्योंकि कंपनी भी आपके प्रोविडेंट फंड में कुछ कंट्रीब्यूट करती है, आई थिंक अराउंड 12% या 14% के अराउंड कंट्रीब्यूट करती है, और एम्प्लॉय भी अपनी तरफ से जितना चाहे वो कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी सैलरी का। फिर हेल्थ बेनिफिट आता है कई बार, या हेल्थ इंश्योरेंस होता है, कंपनी ने आपका हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया, उसके बदले जो प्रीमियम है कंपनी पे कर रही है और थोड़ा बहुत आप भी पे कर रहे हो, ठीक है। आपकी होती पेंशन, जो बुढ़ापे के लिए पेंशन है, उसमें भी क्या है, कंपनी भी कंट्रीब्यूट कर रही है, आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। बट याद रखना, पीएफ और पेंशन ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। पीएफ को जब विड्रॉ किया जाता है एक लमसम अमाउंट होता है ना, एक साथ आपने बहुत सारे पैसे निकाले हैं जो भी आपने डिपॉजिट जमा किए थे। और पेंशन क्या है, आपको सैलरी के फॉर्म में, जब बुढ़ापे के बाद 60 के बाद जो आपको मिलती रहती है रिटायरमेंट के फॉर्म में, और रिटायरमेंट के बाद हर महीने 10,000 20,000 50,000 जो मिलता है वो हमारा पेंशन का पार्ट होता है। तो ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं ये हमारे किसके पार्ट हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसमें पहला आता है वेज एंड सैलरी इन कैश, दूसरा आता है वेज एंड सैलरीज इन काइंड, तीसरा आता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। यहाँ पे कई बार क्या वहाँ पे क्या है, जो कंपनी है वो कंट्रीब्यूट कर रही है, इसमें क्या पीएफ है, हेल्थ इंश्योरेंस है, पेंशन है। यहाँ पे एक और चीज़ आपने देखी होगी, जब भी किसी का पैकेज लगता है ना तो कंपनी क्या बोलती है, हम आपको 18 लाख का सीटीसी देंगे, मतलब पैकेज आपका 18 लाख का, बट वो सैलरी इन हैंड नहीं होती है, सैलरी इन हैंड नहीं होती है, वो सीटीसी होता है। सीटीसी का सीधा मतलब क्या है, कॉस्ट टू कंपनी, मतलब कंपनी आप पे टोटल एक साल में 18 लाख रुपए खर्च करेगी, जिसमें आपकी कैश इन मतलब सैलरी इन कैश और काइंड दोनों आ जाएगी, है ना, क्योंकि कैश के बदले ही काइंड को कंपनसेट किया जाएगा। प्लस आपके जो ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा कंपोनेंट है, ये बहुत ही आसान कंपोनेंट है, ये रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी, अब हम जानते हैं आपने कोई भी प्रॉपर्टी रेंट की तो वो क्या है, आपका रेंट का पार्ट है, रेंटल पार्ट है, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी था, आपने मकान दे दिया, दुकान दे दिया, कोई प्लॉट दे दिया, कुछ भी दे दिया, गाड़ी दे दी, है ना, तो ये रेंटल पार्ट है। बट रॉयल्टी क्या है, इनटेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट। यदि अब आप उसको यूज करोगे तो उसके बदले जो आप रेंट दोगे या पे आउट करोगे उसको आप क्या बोलोगे, रॉयल्टी। जैसे कि मानते हैं हल्दीराम का रेस्टोरेंट है और कोई व्यक्ति चाहता है कि हल्दीराम के नाम से एक रेस्टोरेंट वो भी खोले, तो उसके लिए वो क्या करेगा, हल्दी नाम का यूज़ करेगा, नाम का हल्दीराम वाला आ जाएगा, क्या बोलेगा, भाई हाँ बहुत बढ़िया आप मेरे नाम का यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब चंगा सी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हल्दीराम उसको कंपनसेशन मांगेगा उससे कि भाई साहब आप मेरा नाम जो इतना बढ़िया फेमस है मार्केट में, आप उसको यूज करो, उसके बदले आप मुझे कुछ दोगे, पे आउट करोगे, क्योंकि उस नाम को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। तो ये भाई पूछेगा भाई आपको क्या चाहिए, तो कहेगा जी रेंट दो उस नाम का यूज़ करने का, जैसे हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करने का नाम रेंट ले रहे हैं, इसी तरह से नाम यूज करने का जो रेंट मिलेगा उससे आप क्या बोलते हो, रॉयल्टी, ठीक है। जैसे यूट्यूब पे भी आप देखते हो कई सारी वीडियोस पे कॉपीराइट आ जाता है, क्यों, क्योंकि आपने किसी और का कंटेंट यूज़ किया है और उसको आपने क्रेडिट नहीं दिया या उसको कंपनसेट नहीं किया मॉनेटरी टर्म्स में, तो वो क्या करेगा, आपको ऊपर कॉपीराइट डाल देगा। किसी सॉन्ग को आपने यूज़ किया तो आप उस सॉन्ग को फ्री में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उस सॉन्ग के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। जो प्रोड्यूसर है उसके पास असेट है, उसका राइट है कि वो इसको, ये जो प्रॉपर्टी है या फिर सॉन्ग है, वो किस किस व्यक्ति को देगा यूज़ करने के लिए, फ्री में दे या पैसा वो डिसाइड करेगा खुद ही। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। तो जब भी आप कोई इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, नेम, गुडविल ये सब यूज़ कर रहे हो तो वहाँ जो भी आप पेमेंट करोगे उसको हम बोलते हैं रॉयल्टी, जो कि एक तरह का रेंट ही है। अब इसका तीसरा कंपोनेंट आता है इंटरेस्ट।
अब आपने क्या किया, किसी से पैसा उधार लिया और उस पर जो आपने क्या किया, पे किया है पैसा, है ना, इंटरेस्ट जो दिया है एक्स्ट्रा अमाउंट, वो आपका सिंपली इंटरेस्ट में काउंट होता है। ठीक है, इसके बाद एक और कैटेगरी आती है किसकी, प्रॉफिट की। अब प्रॉफिट क्या है, जो कोई भी कंपनी है, फर्म है, वो जो पैसा अर्न करती है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, अपने ऑपरेशंस के थ्रू, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम जानती है, रेवेन्यू माइनस, है ना, क्या बोलते हैं उसको, जितना आउटपुट कॉस्ट हुआ और जितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। अब इस प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा, भाई और बहनों, मोदी जी आ जाएंगे, कहेंगे कॉर्पोरेट टैक्स चाहिए मुझे, तो जी आपकी कंपनी ने बहुत ज़्यादा मोटा पैसा कमाया है तो आप मुझे टैक्स दो। तो प्रॉफिट का जो पहला हिस्सा होता है वो कॉर्पोरेट टैक्स होता है। अब दूसरा हिस्सा क्या होगा, डिविडेंड। जो भी कंपनी ने अर्न किया है, कंपनी उसे क्या करेगी, अपने जो भी ऑनर्स हैं उन्हें में बांट देगी। कंपनी क्या करेगी, जो भी पैसा है उसको अपने जो ऑनर्स है उसमें बांट देगी, उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तीसरा कंपोनेंट क्या होगा, कंपनी अपने पैसे को संभाल के रखेगी, जिसको बोलते हैं रिजर्व। रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग। तो कंपनी के प्रॉफिट के 3 हिस्से हुए। पहला, सरकार आगे ले गई, कॉर्पोरेट टैक्स, है ना, अराउंड 40% के आसपास है ये। फिर डिविडेंड, कंपनी के ऑनर्स में बांट दिया गया। चौथा, रिटेन अर्निंग, कंपनी ने अपने फ्यूचर के लिए बचा कर रख लिया कि भाई फ्यूचर में हम इससे काम करेंगे। ठीक है, तो ये बनता है हमारे 4 कंपोनेंट हो गए। इसके अलावा एक आखिरी आता है मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स इनकम किसके लिए होता है, जैसे कि हमने देखे हैं बहुत सारे ऐसे जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जैसे कि जिनकी छोटी मोटी दुकानें हैं, रेडी वाले हैं, या इस तरह के लोग जो हैं जो अपने ही घर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे दुकान होती है जनरल ग्रोसरी शॉप जो होती है इंडिया में, किसी ने क्या अपने ही दुकान, अपने ही घर में क्या है ग्रोसरी शॉप खोल रखी है, खुद ही वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय भी काम कर रहा है, खुद ही ओनर ही है, खुद का ही रेंटेड हाउस है, खुद की कैपिटल लगा रखी है। तो उस केस में क्या होता है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है, वेज सैलरी क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, प्रॉफिट क्या है। उस केस में हम क्या करते हैं, मिक्स इनकम देते हैं। जैसे एक मानते हैं ग्रोसरी शॉप वाला है, उसने क्या किया, अपना ही घर का एक छोटा सा दुकान, अपने घर रूम लिया, जिसमें उसने क्या किया, एक दुकान डाल दी। अब दुकान डालते तो वो खुद से तो रेंट मांगेगा नहीं हर महीने, भाई साहब मुझे तो रेंट दे दो, बट वो क्या कर रहा है, रेंट का अमाउंट सेव कर रहा है, तो वो उसकी कहीं ना कहीं इनकम का पार्ट बन रहा है। ठीक है, फिर उसने खुद का कैपिटल यूज किया, मान लेते उसने 1.5 लाख रुपये उसमें इन्वेस्ट किया, तो उस 1.5 लाख रुपये में क्या है, वो मान लो किसी से उधार लेता या बैंक से लोन लेता, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता, बट क्योंकि उसने खुद की कैपिटल यूज की है तो उसको इंटरेस्ट भी बच रहा है, तो वो भी उसका इनकम का पार्ट हो गया। और वो कोई एम्प्लॉय को ना रखे, खुद ही पूरी दिन दुकान में बैठा रहता है या उसके फैमिली मेंबर बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे जो सैलरी है और वेज है उसका पार्ट भी बच रहा है, तो वो भी क्या है, उसकी इनकम का पार्ट में जुड़ जाता है। उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी क्या है उसमें जुड़ रहा है, क्योंकि एज अ ऑनर भी वो कुछ ना कुछ अर्न कर रहा है। तो ये हमारी तरफ से क्या है, इसको मिक्स इनकम बोल देते हैं। यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते इन सभी तरह के जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम है, वेज में, रेंट रॉयल्टी में, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में। इसलिए हमने एक 5वीं कैटेगरी बना दी, जिसको बोला, हमने बोला क्या है, मिक्स इनकम। अब इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस का। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में हम क्या करते हैं, जो ये बीच की हमने 3-4 चीजें देखी, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन जब 4 चीजों को आप जोड़ देते हो तो आपको मिलता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का सीधा मतलब है एक कंपनी ने ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन उसको कितना मतलब सरप्लस हुआ है, कितना उसको एक्स्ट्रा अर्निंग हुई है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, अब इन चारों चीज़ों को आप जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा नेशनल इनकम बाय द मीन ऑफ इनकम मेथड। ठीक है, अब इसको भी हम एक बार, नेशनल इनकम का एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है जिसमें हम देखेंगे कि नेशनल इनकम का जो सारे कंपोनेंट्स हैं उसको हम एक साथ रख के देखेंगे और उसका एक न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे। तो इसको हम करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।